A very good morning to all of you, bache. So yesterday we were doing question number 15. We will continue with the same question number 15. We were given the matrix A is equal to 2, 3, 1, 2, 3, minus 3, 2, 1, and then 5, minus 4, minus 2. We are to find A inverse. And then using this, we are to solve the given system of linear equations. 2x minus 3y plus 5z is equal to 11. Then 3x plus 2 minus 4z and is equal to minus 5. X plus 5 minus is equal to minus 3. Now, first of all, we are to find A inverse. For finding out A inverse, we have to check if the determinant A is equal to 0 or not equal to 0. If the determinant A is not equal to 0, then only A inverse exists. So yesterday we have calculated this to be equal to minus. Determinant A हमारा -1 आ गया था. So this is not equal to 0. Therefore, the given system of equations is consistent and A inverse exists. There is a unique solution for this. Now we will find out A inverse. For A inverse, we are having this 1 upon determinant A into adjoint of A. So we are to calculate adjoint of A, that I'm writing down directly over here. Determinant, we are having -1. Adjoint, I am writing directly, but you will show the calculations also. So this is 0, 2, 1. After taking the transpose, I am writing it. -1, -9, then -5, then 2, 23, and 13. So here we have find out the value of A inverse. This is negative of adjoint of A हो जाएगा. तो ये सारे आपके change हो जाएंगे. This will be 0, 1, -2. -1 से मैंने multiply कर दिया. So this is 0, 1, -2. Then -2, 9, -23, -1, 5, and -13. Positive values जो आपकी थी वो negative बन जाएंगी. जो negative थी, that values will become positive. So this is A inverse. Now using this A inverse, we are to solve this given system of equations. कल भी आपको ये चीज मैंने बताई थी. If you see the coefficients of x, 1, here we are having 2, 3, 1. Here it is -3, 2, 1. Coefficients of y. This is again -3, 2, 1. And the constant term, coefficients of z, we are having 5, -4, and 2. Here again 5, -4, and -2. So it means कि जो हमारा given system of equations है, that can be written as given system of equations can be written as here we will be having this matrix A 2, 3, 1. इसको हम x ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे. So 2, 3, 1 -3, 2, 1 5 -4 -2 a into x में अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं. तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हम बना देंगे इसकी. जो है हमारा सिंगल कॉलम है यहाँ पे, तो सिंगल कॉलम की फॉर्म में x y z हम लिख लेंगे. एंड देन हियर 3 रोज हैं, सिंगल कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इसको कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखोगे 11 -5 एंड -3. सो यहाँ पे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको. तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. अब हमें x कैलकुलेट करना है. So x we are having as xy. This is equal to A inverse. We have already calculated over here. 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13 and B constant terms we are having 11 -5 and -3. Now this is a 3 by 1 matrix. This is a 3 by 3 matrix. This is again a 3 by 1 matrix. Number of rows of the first matrix
matrix. तो अब आप इसको simple, so here we will be having this is 0 into 11 0, 1 into minus 5 is minus 5, minus 2 into minus 3 is plus 6. So here in the first we are having 0 plus 6. Then minus 2 into 11 minus 22 minus 45 plus 69. And in the third row, we are having minus 11, 5 into minus 5 minus 25, and then plus 39. This is a 3 by 1 order matrix. Now we will simplify this and we will get the values. X, Y, Z. This is equal to 6 minus 5, 1, minus 22 minus 67 plus 69 is 2. Then this is 30 minus 36 plus 39. This is 3. अब दोनों matrices आपकी equal हैं, order same है, तो corresponding elements will be equal. So this implies that x आपका 1 आ जाएगा, y will be 2, and the z will be 3. So this is the solution of the given equation. X हमारे पास 1 आ गया, y is 2 and z is 3. तो आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये वाला स्टेप हम बाद में करते थे ए इनवर्स निकालने वाला, वो स्टेप हमें यहाँ पे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी, पहले उसने हमें कहा फाइंड ए इनवर्स, फिर उसने कहा यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो हमने पहले ए इनवर्स निकाल लिया. ए इनवर्स कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट हमने चेक किया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ए इनवर्स विल एग्जिस्ट. उसके बाद ए इनवर्स हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए. एडजॉइंट ए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड देन क्योंकि बाहर -1 था तो अंदर वाले सभी टर्म्स के साइन चेंज हो गए. आफ्टर दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे हम लिखते थे, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते, x इक्वल टू a इनवर्स b. a इनवर्स हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू हमने एज इट इज यहाँ डाली. मैट्रिक्स D हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स से मिल गई थी हमें, तो यहाँ आपने सिंपली प्रोडक्ट लेके यू विल गेट योर आंसर. So this was your question number 15. Now moving on to question number 16. Question number 16 जो है आपका, that is a word problem. इसमें आपको पहले जो ये system of equations है, this you have to form. तो इस तरह के questions आपने 2 variables में 10th standard में किए हुए हैं. यहाँ पे you will be doing with the 3 variables. मेथड बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से आप मान लेते हो, जो भी चीज आपको गिवन होती है, जो 3 चीजें आपको निकालनी है वो आप x y z एज्यूम कर लोगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is rupees 60. This is 4.6. So we are given cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice, rupees 60. 4 kg onions है and 3 kg wheat and 2 kg rice. This cost is given to be rupees 60. Then cost of 2 kg onions, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. And then cost of 6 kg onions, then 2 kg wheat and 3 kg rice. This is given to be rupees 70. No doubt कि आजकल इतनी सस्ती चीजें नहीं मिलती हैं, but we have to go according to the question. हमें यहाँ गिवन है 4 kg अनियंस की कॉस्ट, 3 kg वीट की कॉस्ट और 2 kg राइस की कॉस्ट. तीनों की कॉस्ट मिला के टोटल जो है रुपीज 60 है. 2 kg राइस, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस के लिए रुपीज 90. 6 kg onions, 2 kg wheat and 3 kg rice के लिए the cost is given to be rupees 70. What we have to find the cost of each item
पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हर आइटम की कॉस्ट हमें पर केजी के अकॉर्डिंगली निकालनी है। जो चीज निकालनी है उसको हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, 1 kg onion is rupees X. Cost of 1 kg wheat rupees 5. तीन वेरिएबल्स हम यहाँ पे ले लेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज रुपीज Z. अब देखो 4 kg अनियंस की कॉस्ट 4x हो जाएगी, 3 kg wheat की कॉस्ट विल बी 3y, 2 kg राइस की कॉस्ट विल बी 2Z. तो दिस इम्प्लाइज 4x, फर्स्ट वाली इक्वेशन हम इससे फॉर्म करते हैं। 4x अनियंस की कॉस्ट हमने x मानी है, तो 4 kg की कॉस्ट 4x हो जाएगी, प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। थर्ड इक्वेशन विल बी 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। अब ये तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। आगे हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। अब आपने इसको मैट्रिक्स मेथड से फॉर्म करना है, तो इसको हम रीराइट कर लेंगे अगेन सेम वे में। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax is equal to b। मैट्रिक्स A हमारी बनेगी कोफिशिएंट्स से, तो दिस विल बी 4 2 6 3 4 2 2 6 3। These are the coefficients of x, coefficients of y, coefficients of z with sign. मैट्रिक्स x हमारी हमेशा वेरिएबल्स से बनती है, वेरिएबल्स हमारे x, y and z. And matrix B that is formed by the constants 60, 90 and 7. ये हमारी matrix A है. So first of all, we are to check if the determinant is not equal to 0. तो determinant हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 4 into 12 minus 12 0 हो जाएगा, minus 3 into 6 minus 36 and plus 2 into, I am expanding it by row 1, 2 into 4 minus 24. So इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, this will be 0 minus 90 and this will be 40. अब यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, so this is equal to 50, not equal to 0. So therefore A inverse exists, given system of equations is consistent. अब A inverse निकालना है हमने, तो that is 1 by determinant A into adjoint A. Adjoint A again I am writing directly. आप कैलकुलेट कर लेना इसको, 30 0 and minus 20 minus 20 10 and 10. तो इसको आप 50 को चाहो तो अंदर ले जाओ, अदरवाइज यू कैन राइट इट इन दिस वे ओनली। अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स है मेरा 1 by 50 इंटू 0 30 minus 20 minus 5 0 10। यहाँ पे एडजॉइंट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बनता है। सो दिस इज 10 minus 20 and 10। इसको मैट्रिक्स बी से हमने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 60 90 एंड 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ पे आपकी जो टर्म्स हैं ये 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, दिस इज 3 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो आपकी जो टर्म्स बनेगी दैट विल बी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी दैट विल बी अ 3 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 0 into 60 0 minus 5 into 90 minus 450 and then 10 into 70, that is 700. Now the second 30 into 60 1800, then 0 and minus 1400. Now the third row minus 1200, then 900 plus में and plus में 700. So this is equal to
700 minus 450, that is 250. Then 18 minus 14, that is 400. And then 9 7 1600 minus 1200, that is again 400. यहाँ पे साथ में 1/50 भी है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 50 को आप अंदर ले जाओगे तो आपका जो आंसर है, यू विल गेट दैट मैट्रिक्स x is equal to, this is 250 upon 50, that is 5, 400 upon 50, 8, 400 upon 50, 8. अब corresponding elements will be equal, so this implies x is 5, y is 8, z is 8. यानी कि ये आंसर एक्स वाई जेड की टर्म्स में नहीं लिखोगे आप, यू विल राइट डाउन द आंसर जो आपने अज्यूम किया था। तो आंसर में आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इज ₹5, एक्स की वैल्यू 5 थी। कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is ₹8, cost of 1 kg rice is ₹8. So you will write down your answer in this way. 1 kg onion, ₹5. Then same way में 1 kg wheat, ₹8, and 1 kg rice also ₹8. So this was your exercise 4.6. So you will do this, you will revise this question also, plus इसके जो आपके examples हैं word problems वाले NCERT के, that also you will do. Now the miscellaneous exercise, most of the questions still we will not do because we haven't done the properties of determinants. तो आपने इसमें जो आपके direct questions हो रहे हैं, like your question number 1 है यहाँ पे, question number 5 you can do directly, then question number 7 you will do, question 8 mark कर लो अपने अपने जो आपने अब questions try करने हैं, because ये method हम already कर चुके हैं, तो these you will try yourself. Whatever will be your doubts, that I will take tomorrow, on Monday. Tomorrow you are not having your class. Question number 1, then question number 5, 7, 8, then 9 and 10. These can be done directly. And after that, you are to do question number 16. Question number 16, I will give you the hint. In 10th also you have done this kind of questions. You are given over here 2 upon x. This is your miscellaneous exercise, question number 16. यहाँ पे आपको 2 upon x की फॉर्म में गिवन है, so what you will do कि आप 1/x को u पुट कर लोगे, 1/y को you will put as v, and 1/z you will put as w. जैसे आप 10th में करते थे, जो आपका डिनोमिनेटर में जब इस तरीके से गिवन होता था तो आप 1 upon वाली फॉर्म में उसको पुट कर लेते थे. In the same way you are to do here also. So जो हमें गिवन है इक्वेशन, that is 2/x plus 3/y plus 10/z is equal to 4. Then 4/x plus minus 6/y plus 5/z is equal to 1. Then 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z is equal to 2. So what you will do, you will put a 1/x is equal to u, 1/y is equal to v, and 1/z is equal to w. So जो आपकी equations हैं, that will become 2u plus 3v plus 10w is equal to 4. Second equation will be 4u minus 6v plus 5w is equal to 1. Then this will be 6u plus 9v minus 20w is equal to 2. ये equation बन गई आपकी. अब आपने क्या करना है, इस equation को same way में, जो आप ax is equal to b लिखते थे, सेम वे में लिखोगे. मैट्रिक्स A आपकी बन जाएगी 2 4 6. कोफिशिएंट्स ऑफ u ले लेंगे यहाँ पे अब x की जगह. Then next column will be 3 minus 6 9 coefficients of v, and the last will be coefficients of w 10 5 and minus 20. Matrix x आपकी अब x y z की जगह this will be u v w. So whatever variable you are having, according to that you are to deal over here. And this is equal to, यहाँ पे आपकी constant terms ही रहेंगी. Then आपकी matrix ये A है, A को check करो, find out the determinant. If determinant is not equal to 0, then A inverse exists. इसका determinant निकाल लोगे, then inverse निकाल लोगे.
देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b पुट करोगे, बाकी सारा मेथड आपका सेम है। जो वैल्यूज आएंगी अब इसमें एक्स वाई जेड की जगह आपकी यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज आएंगी। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपका यू यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आया, वी 1/3 एंड डब्ल्यू इज 1/5। तो आपने क्या करना है, अब u को हमने क्या पुट किया था यहाँ पे 1/x, तो आंसर आपने एक्स वाई जेड की टर्म्स में देना है, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन गिवन है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 1/x, दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सो आंसर में यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में नहीं छोड़ूंगी, आंसर ऑल्सो आई हैव टू गिव इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे u 1/2 इम्प्लाइज u की वैल्यू हमने 1/x पुट किया था u को, so this is equal to 1/2. From here your x will be 2. Then v 1/3 means आपका 1/y जो है that is 1/3, यानी कि आपका y आ गया 3, and w 1/5 means आपका 1/z जो था that is 1/5, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो आंसर आपने एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही देना है। सो दिस इन दिस वे यू विल डू योर क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर and 18 again 17 में you are given if ABC are in AP, तो आपने AP की कंडीशन लगा देनी है। whenever the three numbers in given in AP, then हम क्या करते हैं, twice of the middle term is equal to the sum of the extremes, यानी कि आप यहाँ पे ये कंसेप्ट B माइनस ए C माइनस ए से आप डायरेक्ट करते हो। तो यहाँ C माइनस B, यहाँ पे जब माइनस बी आप लेफ्ट साइड पे लाओगे तो b प्लस बी विल बिकम 2b, एंड माइनस ए जब आप इधर लेके जाओगे दैट विल बी c प्लस ए। तो हम डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट लगा रहे थे +1 में, यू नो दिस। तो ये आपने डायरेक्ट लगा के जो आपकी वैल्यूज होंगी वहां पे आपने रिप्लेस कर देना है इसको 2b को c प्लस ए से, या c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपकी कंडीशन बन रही होगी, इस कंडीशन को आप रिप्लेस कर। So miscellaneous exercise you are to try yourself. In +1 you have done your LPP. अब जरा मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो कि उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं that you know, or should I tell that again? LPP chapter 12 you had already done in your +1. If should I explain it from the very beginning, or should I directly start with the questions? Any one of you can unmute and just tell me so that I can start with. बी क्विक बच्चे, इतना टाइम नहीं लगता, इतना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें आता है कि नहीं आता। 12.1 okay fine, Charanjot has replied, so I will assume that he has given the response on all behalf of whole of the class. So I'm just starting with the questions. एक दो questions जो हैं 12.1 और 2 के I will make you revise, ताकि आपकी जो recall हो जाए सारा जो concept था। Exercise 12.1 का I'm explaining question number 2. आपको इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता होगा कि जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में जो हमें इक्वेशंस गिवन होती थी कि उन इक्वेशंस को आपने लेके चलना है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये इक्वेशन लेके चलनी ही चलती है। ये सारी चीजें आपको पहले बताई हुई है। इनकी 1-1 मार्क में जो है डेफिनेशंस भी समटाइम आ जाती है, तो दैट आल्सो यू हैव। So this is your chapter number 12. So second question book का है exercise 12.1 का, ये already आपने किया हुआ है, I'm just making you recall the concepts. हमें यहाँ पे given है minimize z is equal to -3x plus 4y. z वाली जो होती है this is your objective function, तो हमारा यहाँ पे objective function है कि इसको हमने minimize करना है z is equal to -3x plus 4y को। Subject to constraints हमें given है, equations inequalities जो है वो हमें given है, x plus 2y less than equal to 8. Then next inequality is 3x plus 2y less than equal to 12. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ये हमें constraints given है। So objective function हमारे पास है, इनको हम
जो इनइक्वालिटीज हैं उनको हम ले लेते हैं L1 और L2। आप जरूरी नहीं है ये अज्यूम करो, आप डायरेक्ट भी लेके चल सकते हो। और इधर मुझे ये गिवन है 3x + 2y इक्वल टू 12। इसको मैंने जो है लीनियर इक्वेशन बना लिया। x + 2y इक्वल टू 8, 3x + 2y इक्वल टू 12। लेस देन वाला जो साइन था वो मैंने हटा के, क्योंकि मुझे इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन सेट निकाल के हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो इसका मेरा जो सॉल्यूशन सेट आएगा, अगेन देखो यहाँ पे जब आपका x 0 पुट करोगे तो y आपका 4 आ जाएगा। मिनिमम 2 वैल्यूज निकाल लेंगे हम यहाँ पे। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा 8 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे हम चेक करेंगे, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारा x 4 आएगा। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y हमारा 6 आ जाएगा। 2 वैल्यूज से ही हम इसको प्लॉट करेंगे। बाकी जो थर्ड वैल्यू है दैट विल ऑटोमेटिकली लाई ऑन द लाइन। सो अब हमने इसकी प्लॉटेशन करनी है। x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 जा रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्राफ पे ही प्लॉट करोगे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके चलोगे। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। नेगेटिव वैल्यूज आई एम नॉट शोइंग, क्योंकि x और y मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए हुए हैं। और y की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है दैट इज 6। So I have to plot the points now. First लेके चल रहे हैं x0 y4, that is this point. Then x8 y0, आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ये प्लॉटेशन आप 9th से करते आ रहे हैं, तो यू नो इट वेरी वेल हाउ टू प्लॉट। यहाँ ध्यान देना है, जो आप लिखोगे यहाँ पे दैट शुड बी एन इक्वेशन, इनइक्वालिटी नहीं लिखोगे। ये मैंने कौन सी जो है लीनियर इक्वेशन ली है, x + 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालना है आपने, लेस देन वाला साइन, लेस देन इक्वल टू वाला साइन नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। अब सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, x 0 है तो y 6 है। ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं आपको। एंड देन x 4 है, y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे। ये इक्वेशन है मेरी 3x + 2y इक्वल टू 12। इक्वेशंस जरूर लिखनी है और इक्वल टू के साइन के साथ लिखनी है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब जो ये दोनों आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट 2, 3। अगर आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखो यहाँ पे, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x = 4, यानी कि x = 2। x को जब आप 2 पुट करोगे तो y आपका क्या आएगा, 3। यानी कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 2, 3। डायरेक्ट अगर आप ग्राफ पे प्रॉपर डिस्टेंसिंग लेके बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसका 2, 3 आएगा। नाउ वी हैव टू चेक द शेडिंग, कि जो ये हमारा शेडेड एरिया है वो कौन सा बनेगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y <= 8। अब क्योंकि दोनों लाइंस मेरी ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, तो आई कैन गो फॉर द ओरिजिन टेस्ट। अदरवाइज आपको ये चीज पता है कि लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट छोड़ के आप किसी भी पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को टेस्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 1, 1 ले लेती हूँ। 1, 1 मेरा यहाँ पे लाइन पे ना इस पे लाई कर रहा है ना इस पे लाई कर रहा है, तो आप ऐसे ही 0, 0 ओरिजिन टेस्ट भी कर सकते हो, वट एवर इज कन्वीनियंट। तो मैं 1, 1 से भी शो कर देती हूँ। सपोज मैंने 1, 1 पॉइंट लिया, x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, 1 + 2 3, दैट इज <= 8। कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, यानी कि जिस साइड पे 1, 1 पॉइंट लाई कर रहा है, शेडिंग उसी साइड पे जाएगी, क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू होल्ड है। तो इसकी शेडिंग नीचे की तरफ। अब सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे। 3 × 1 is 3, plus 2 × 1 is 2। 3 + 2 is 5, which is <= 12। कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अगेन इसकी वाली लाइन की शेडिंग भी जिस साइड पे पॉइंट लाई कर रहा है 1, 1 उस साइड पे जाएगी।
अगर आप ऑरिजिन से भी करते हो तो ऑरिजिन से भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। 0 + 0 > 8 ट्रू है तो ऑरिजिन की तरफ शेडिंग, यहाँ पे भी 0 + 0 <12 तो दैट इज अगेन ट्रू तो ऑरिजिन की तरफ शेडिंग। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें x > 0 गिवन है तो उसकी शेडिंग इधर आएगी, y हमें > 0 गिवन है उसकी शेडिंग ऊपर की तरफ जाएगी, y पॉजिटिव की तरफ। तो अब अगर मैं चारों को देखूं, ये शेडिंग नीचे, ये शेडिंग इधर, ये राइट पे, ये ऊपर की तरफ, तो मेरा जो कॉमन रीजन बनेगा दैट इज दिस वन। अब जो कॉमन रीजन है उसके हमें क्या लेने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स लेने होते हैं, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो हम, जो हमारी वैल्यू होती है z की, वो कैलकुलेट करते हैं। z हमें गिवन है -3x + 4y, सो अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट। अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे कौन कौन से हैं, एक तो ये है ओरिजिन 0 0, देन दिस इज द कॉर्नर पॉइंट 4 0, देन दिस इज 2 3 एंड देन दिस इज 0 4। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कॉर्नर बन रहे हैं, जो मेरा बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन के आपने सभी कॉर्नर्स ले लेंगे, तो बाउंडेड रीजन मेरा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स हमने ले लिए। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज 4 0, दिस इज 2 3, दिस इज 0 4। तो तभी मैंने कहा था कि ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपने साथ में जरूर लिखने हैं, ताकि जो बाउंडेड रीजन है वो हमें इजी रहे निकालना। अब 0 0 पे x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे तो z भी आपका 0 आ जाएगा। देन जब आप इसको 4 पुट करोगे, x को, y को 0 पुट करोगे तो 4 इंटू -3 इज 12 प्लस 4 इंटू 0 0, तो -12 + 0 इज -12। देन 2, 3 हम इसको जब पुट करेंगे तो 2, 3 पे दिस विल बी -3x है तो -6 हो जाएगा, ये आपका +12 बनेगा तो दैट इज +6। एंड देन 0, 4 पे 0 इंटू -3 इज 0 प्लस 4 इंटू 4 इज 16, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16। अब हमने क्या करना था, इसको मिनिमाइज करना था, तो हमने z की जो सबसे कम वाली वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसको देख लेना है, दैट इज -12। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब ये मिनिमम वैल्यू है हमारी, तो क्योंकि बाउंडेड है तो इट मींस यही जो है हमारा आंसर होगा। अनबाउंडेड में वी हैव टू चेक इट अगेन कि ये है या नहीं है, बट क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ग्राफ था दैट इज बाउंडेड वन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज बन जाएंगी। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखोगे जेड इज मिनिमम एट, कहाँ पे मिनिमम है, 4, 0, तो therefore x is equal to 4, y is equal to 0। x 4 ले लिया, y 0 ले लिया, this is the optimal solution। अब ये solution आ गया। In case if they ask you the minimum value, so you are to write the minimum value also। Minimum value is -12। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब मिक्सचर वगैरह की बात हो रही होती है तो उसमें हम ये 0 वाली वैल्यूज नहीं लेते, क्योंकि अगर एक वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, सिर्फ दूसरी वैल्यू रह जाती है, तो एक सिंगल चीज से आपका मिक्सचर नहीं बनता। तो अगर मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में मान लो आपकी दो मिनिमम वैल्यूज सेम आ रही होती हैं, तो वहां पे जो 0 वाली आपका कॉर्नर पॉइंट होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मिक्सचर के लिए दोनों का जो कंटेंट है वो होने जरूरी है। अगर एक कंटेंट 0 यानी कि एक हम डालते ही नहीं, सिर्फ एक ले लेते हैं, तो वो मिक्सचर नहीं बनता। तो ऐसे केसेस में जो आपके कॉर्नर पॉइंट 0 वाला होता है उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, जब आपकी वैल्यूज सेम बन रही होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। नाउ वन क्वेश्चन, ओके टाइम इज ओवर। अब मंडे हम करेंगे अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन। टिल देन आप इसके एक बार इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेना। मंडे आई विल आस्क यू द डाउट्स, जो भी हैं आपके डाउट्स, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से आपके पूछूंगी, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने इसको रीड किया है कि नहीं किया। नाउ थ्योरी आपको पता है, थॉरली आपको रीड करनी है,
कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द केस स्टडीज या 1 मार्क के आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व. So if anyone is having any doubt, then you can ask, otherwise you can leave the class. Whosoever is having the doubt, that side can unmute and ask the doubt. So I hope, I guess no doubts are there. So fine, thank you. Have a nice day. I'm ending the meeting. Thank you.